السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں نائٹ کرفیو پر غور، قطعی فیصلہ چیف منسٹر پر چھوڑ دیا گیا۔ محکمہ صحت نے بارز بند کرنے اور سنیما تھیٹرز میں نشستوں کی تعداد نصف کرنے کی تجویز حکومت کو پیش کی۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار۔ ریاست میں لاک ڈاؤن کی افواہیں مسترد، وزیر صحت اٹالہ راجندر۔ TRS کی رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹلا کویتا ہو گئی کورونا وائرس سے متاثر۔ ناگرجنا ساگر کی رائے دہی کے اختتام تک چوکنا رہے۔ چیف منسٹر KCR کا پارٹی قائدین سے ٹیلی فون پر رابطہ، آرام نہ کرنے کا مشورہ۔ تلنگانہ میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کی جائے، روزانہ 30 اموات، دواخانوں میں بستر دستیاب نہیں، مجالس مقامی کے انتخابات کی مذمت، محمد علی شبیر۔ ملک بھر میں دوسرے لاک ڈاؤن کے خدشات، تلنگانہ سے لاکھوں مزدوروں کی واپسی، ٹرین، لوریوں اور خانگی گاڑیوں میں مسافروں کا ہجوم، کورونا وائرس میں اضافے سے مزدور پریشان۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ملازمین کی تقسیم کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ شہر حیدرآباد میں 1 سال بعد دوبارہ ریمڈیسیور انجیکشن کے علاوہ پلازما کی مانگ میں زبردست اضافہ۔ غیر مجاز تعمیرات اندرون 3 ہفتے منہدم کرنے بلدیہ کو تلنگانہ ہائی کورٹ کے عہدیداروں کی ہدایت۔ MGM اسپتال ورنگل کے 20 ہاؤس سرجن کورونا وائرس سے متاثر، متحدہ ورنگل ضلع میں کورونا کیسز میں اضافے سے عوام میں تشویش۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست میں کورونا کے تیزی سے پھیلنے کے پیش نظر محکمہ صحت نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، جن میں بارز کو بند کرنے، سنیما ہالز میں نصف گنجائش کا مشورہ دیا گیا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں اور عملے کی رخصتوں کو منسوخ کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام چیف منسٹر سے 1 ہفتے قبل ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کر کے کورونا پر قابو پانے، ضرورت پڑنے پر نائٹ کرفیو کا مشورہ دیا تھا۔ کئی ریاستوں نے نائٹ کرفیو نافذ بھی کیا، تاہم ابھی تک حکومت تلنگانہ میں لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو کے خلاف ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار اور وزیر صحت اٹالہ راجندر نے تلنگانہ میں لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو نافذ کرنے کی کوئی تجویز نہ ہونے اور افواہوں پر توجہ نہ دینے کا مشورہ دیا۔ کورونا سے صحت یابی کے بعد چیف سیکرٹری نے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کر کے کورونا صورتحال کا جائزہ لیا تھا، جس میں نائٹ کرفیو پر غور کیا گیا، تاہم قطعی فیصلہ چیف منسٹر KCR پر چھوڑ دیا گیا۔ تلنگانہ میں آکسیجن کی قلت کا ریاستی وزیر صحت اٹالہ راجندر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کے ساتھ ساتھ آکسیجن سلنڈرز کی بھی قلت ریکارڈ کی جانے لگی ہے، لیکن ریاستی حکومت کی جانب سے جہاں تک ممکن ہو سکے آکسیجن کے حصول اور قلت کو دور کرنے کے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا۔ اٹالہ راجندر نے ضلع کریم نگر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ ریاست تلنگانہ میں بھی آکسیجن سلنڈرز کی قلت پیدا ہونے لگی ہے، جس کے سبب دواخانے کے انتظامیہ کے علاوہ گھروں میں قرنطینہ کیے ہوئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے آکسیجن کی قلت کو دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی کہ ریاست میں میڈیکل آکسیجن جو کہ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، اس کا طبی اغراض کے لیے ہی استعمال محدود کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے میڈیکل آکسیجن کا صنعتی اغراض کے لیے استعمال ممنوع قرار دینے کے امور کا جائزہ لیا جا رہا، کیونکہ ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال میں سب سے پہلے انسانی جانوں کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کرے گی۔
टीआरएस पार्टी के रुकन खानसास कौंसिल के कविता कोरोना वायरस से मुतासर हो गई हैं। रुकन कौंसिल का डॉक्टर्स के मशवरे पर टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। हैदराबाद में होम आइसोलेशन के तहत इलाज शुरू कर दिया गया है। टीआरएस के सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर ने नागार्जुना सागर ज़मीनी इंतखाबात की रायदही के इख्तिताम तक पार्टी कैडर को चौकस रहने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, पार्टी उम्मीदवार एन भगत कुमार, टीआरएस के रुकन खानसास कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी, पार्टी के इंतखाबी इंचार्ज टी रविंद्र राव और दूसरे कायदीन को कोटी रेड्डी, अंजया यादव और पार्टी के अरकान असेंबली से टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे कहा कि सिर्फ इंतखाबी मुहिम खत्म हुई है, इंतखाबी अमल जारी है। रायदही के इख्तिताम तक पार्टी के तमाम कायदीन और केडर चौकन्ना रहें और पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कायदीन ने 3 हफ्तों तक पार्टी उम्मीदवार की कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। फैसले की घड़ी में मजीद चौकसी अख्तियार करें और हर एक वोट टीआरएस के हक में इस्तेमाल हो, इसके लिए काम करें। चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन को बताया कि पार्टी उम्मीदवार एन भगत कुमार का ताकतवर मौक़िफ़ है और तमाम सर्वे टीआरएस के हक में है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा किया और कहा कि रियासत में कोरोना वबा की सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो चुकी है और सरकारी व खानगी दवाखानों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर दस्तयाब नहीं है। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हुकूमत पर अवाम की जिंदगी से खिलवाड़ का इल्जाम आयद किया और कहा कि महकमे सेहत की जानिब से मरीजों और अमवात के बारे में गुमराहकुन आदाद व शुमार जारी किए जा रहे। रोजाना सैकड़ों अफराद कोरोना का शिकार हो रहे और अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक सियासी कायद जो हज कमेटी के रुकन रह चुके हैं, कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहत बुरी तरह मुतासिर हो गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने उन्हें किसी खानगी दवाखाने में शरीक कराने के लिए तकरीबन 12 कॉर्पोरेट दवाखानों के जिम्मेदारों से राब्ता कायम, लेकिन किसी भी दवाखाने में बिस्तर दस्तयाब नहीं था। हॉस्पिटल के चेयरमैन से और 3 दवाखानों को ट्राई किया, वहाँ भी नाकाम रहा। उसके बाद कामिनी से लेके 12 दवाखाने जहाँ जिसके चेयरमैन या जनरल मैनेजर्स मेरे दोस्त अहबाब हैं, लेकिन सब हाथ उठा के बोले हमारे पास कोई बेड्स नहीं है। आखिरी में ईटेल राजेंद्र जी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे भी कनेक्ट किया, वो भी उनका पीए से मुझे बात कराए, उन्होंने भी कोशिश करने के बाद बोला एक जगह खाली है सर, किंग कोटी हॉस्पिटल में आप पेशेंट को भिजाओ। किंग कोटी हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम भी दिए, डॉक्टर मल्लिकार्जुन। हम पेशेंट को लेके वहां गए तक उनका फोन बंद है, वो आदमी भी नहीं है। अब वो लोग इतना परेशान है कि हम खामखा के छोटे से दवाखाने में थे, लेकिन लेके आके यहाँ रखे तो यहाँ परेशानी हाल नहीं है। 2 घंटे के बाद मैंने उनके पीए और मैं दोनों मुसलसल सर्च करने के बाद उनका पीए वो डॉक्टर मिलके बोल रहा कि भाई कि मैं कुछ काम से अटक गया था, लेकिन मैं किसी को रख के आया था। बोला कोई आदमी नहीं है वो। तो इस तरीके से इंसानों की जाने, डॉक्टर्स की और दवाखानों के बिस्तरों की नाम। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% vastu, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क भर में दूसरे लॉकडाउन के खदशात के पेश नजर रियासत तेलंगाना के मजदूरों ने अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना होना शुरू कर दिया है और यौमिया हजारों की तादाद में ट्रेन, लॉरी और बसों के जरिए मजदूर अपनी अपनी रियासतों को वापस होने लगे हैं। रियासत तेलंगाना में मजमूई एतबार से 30 लाख मजदूर सिर्फ मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में खिदमत अंजाम देते हैं, रोजगार हासिल करते हैं, जिनमें 7 लाख मजदूर तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वालों का ताल्लुक रेस्टोरेंट और बार के अलावा होटल सनत से है। इसी तरह जायद अज 10 लाख मजदूर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ सनती इदारों में खिदमत अंजाम दिया करते हैं और इसके अलावा प्लाईवुड, वेयर बनाने और केमिकल कंपनियों में 10 लाख से ज्यादा बैरूनी मजदूर खिदमत अंजाम दिया करते हैं, जो कि दूसरे लॉकडाउन के खदशात के तहत अपनी रियासतों और आबाई मुकामात को वापस होने लगे हैं। रियासत तेलंगाना में रोजगार की तलाश में पहुंचने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद का ताल्लुक रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के अलावा दीगर रियासतों से है और उन तमाम रियासतों से ताल्लुक रखने वाली ट्रेनों के जरिए मजदूर वापस होने लगे हैं। इसके अलावा वो दीगर जराये का इस्तेमाल करते हुए भी अपने आबाई मुकाम को मुंतकिल होने को तरजीह दे रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दोनों रियासतों के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को हिदायत दी कि स्टाफ की तकसीम का काम 3 माह में मुकम्मल कर ले। अदालत ने 2 जून 2014 के मुताबिक मुलाजमिन की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने की हिदायत दी। नई रियासत के कयाम के बावजूद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुलाजमिन की अदम तकसीम पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस विनोद कुमार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा है कि 7 बरस गुजरने के बावजूद मुलाजमिन की तकसीम अमल में नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि दोनों रियासतों के ओहदेदारों को बाहमी मशावरत से अंदरून 2 माह गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। 3 महीने में मुलाजमिन की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आंध्र प्रदेश के 3 मुलाजमिन ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक मुलाजमिन की तकसीम अमल में नहीं आई है। तेलुगु फिल्म अदाकार व जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। वो अपने फार्म हाउस पर ही इलाज करवा रहे हैं। वो माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उनकी सेहत ठीक है। पवन कल्याण ने अपने चाहने वालों के नाम पैगाम कहा कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होने के बाद अपने चाहने वालों के दरमियान आ जाएंगे। शहर हैदराबाद में 1 साल बाद दोबारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा प्लाज्मा की मांग में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि खानगी दवाखानों में मौजूद मरीजों को प्लाज्मा की फराहमी के जरिए उनकी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही और प्लाज्मा की तलब में इजाफे के साथ ही दोनों शहरों में प्लाज्मा के अतिया दहिंदगान की जानिब से अतिया देने के अलावा बाज अफराद प्लाज्मा फरोख्त करने लगे हैं और मरीजों की मजबूरी और उनकी सूरत हाल को देखते हुए कीमतों का तयन किया जाने लगा है। शहर हैदराबाद के बेशतर दवाखानों में शरीक मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से प्लाज्मा के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ब्लड बैंक के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डॉक्टर्स के पास मौजूद राब्तों का इस्तेमाल करते हुए प्लाज्मा के हुसूल की कोशिश की जा रही और कई मरतबा मरीजों के रिश्तेदारों की जानिब से की जाने वाली ये कोशिशें जल्द कामयाब हो रही हैं, लेकिन अतिया के नाम पर प्लाज्मा की फरोख्त अमल में लाई जा रही जो कि गैर कानूनी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिदायत दी कि अंदरून 3 हफ्ते तमाम गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दिम कर दें और इन्हदाम के अखराजात इमारत के मालिकीन से वसूल करें। अदालत ने कहा है कि गैर मजाज तामीरात की सूरत में कार्रवाई के तौर पर सिर्फ छत में शगाफ करना काफी नहीं है, बल्कि इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनद्दिम किया जाए। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोनल कमिश्नर्स को सख्त हिदायत जारी की गई है। चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर
मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जोनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 3 जोनल कमिश्नर्स ने अदालत को बताया कि गैर मजाज इमारतों की निशानदेही की गई है, जिस पर अदालत ने कहा काफी नहीं बल्कि कार्रवाई की जाए। अदालत ने तहत की अदालतों को पाबंद किया कि वो गैर मजाज तामीरात के मुकदमात की आजिलाना तौर पर यकसोई करें। कुकटपली, सिकंदराबाद और खैरताबाद के जोनल कमिश्नर्स ने 2019 पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया कि हर जोन में 140 गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही की गई है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा है कि ज्यादातर इमारतों के मालिकीन हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से हुक्म इल्तवा हासिल कर चुके हैं, जिस पर अदालत ने कहा है कि इस तरह के मामलात की आजिलाना यकसोई की जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने वुमेन गार्ड्स जो सीपी ऑफिस बशीरबाग में 4 महीने से गार्ड की ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, उन्हें एजाज से नवाजा और मोमेंटो भी पेश किया गया। इस मौके पर वरलक्ष्मी पीसीएस, प्रतिभा के कल्याणी, जी वसंती और आर हरिका के अलावा सेकेंड टीम एचसी बी ज्योति, के काव्या, सीएच सुरेशा, ए कविता और एम मंजुला और के रामचंद्रप्पा को मोमेंटो से नवाजा किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2021 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले तमाम हिंदुस्तानी आज़मीन हज से कोरोना टीके की पहली खुराक लेने की अपील की है। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया गया है। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मकसूद अहमद खान ने कहा है कि जून के वसत में सऊदी अरबिया के लिए परवाजें शुरू होने की ख़ूबी उम्मीद है और सऊदी अरब के लिए सफर करने वाले तमाम मुसाफिर बशमुल आज़मीन हज को कोरोना टीका लेना जरूरी होगा। इस लिहाज से हज कमेटी ने इस साल सफर हज पर रवाना होने वाले तमाम आज़मीन हज को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया है। मकसूद अहमद खान ने वजाहत पेश करते हुए बताया कि इस साल कोरोना की बदौलत सऊदी हुकूमत की जानिब से हज 2021 के लिए कोई ऑफिशियल इतला मरकजी हज कमेटी या मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर को मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता सऊदी अरब की वजारत सेहत की जानिब से कौंसल जनरल जिद्दा इंडिया को एक खत भेजा गया, जिसमें कहा गया कि उम्रा और हज पर आने के ख्वाहिशमंद अफराद की हिफाजत के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वालों को ही सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत होगी। डॉक्टर मकसूद का कहना है कि अगरचे अभी तक सऊदी अरब की हुकूमत के तवस्सुत से सरकारी तौर पर हज 2021 का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये तय माना जा रहा कि हज के लिए आने वाले आज़मीन को इंसदाद कोरोना वायरस वैक्सीन लेनी होगी और 2 डोज लगवा कर ही सऊदी अरब आने की इजाजत मिलेगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 28 में इस महीने की 30 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी की तरफ से इलेक्शन की सारी तैयारियां हो रही हैं। जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर जीपी कुमार ने कहा है कि इलेक्शन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और नॉमिनेशंस भी लिए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 28 के साबिका काउंसलर की डेथ होने की वजह से 30 तारीख को फिर से इलेक्शन हो रहे हैं। आदाब। जलपल्ली बल्दिया में 20th वार्ड को कैजुअल इलेक्शन का नोटिफिकेशन आज पब्लिश कर दिए। 16 से लेके 18 तक नॉमिनेशन ले लेते हैं या इलेक्शंस के लिए। और उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन नॉमिनेशन 21/4/2021 है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स इज 22nd of this month. Publication of final list of contesting candidates is 22nd of this month after 3 p.m. Date of polling is 30th April 2021. इलेक्शन की तरफ से पूरा वो अरेंजमेंट्स भी कर दी है। बल्दिया की तरफ से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी मौजूद है। सिक्योरिटी भी अरेंज कर रहे हैं इधर ऑफिस में। और कोई भी बेफिक्र से अपना आपका नॉमिनेशन सबमिट कर सकते। अपने गवर्नमेंट भी साथ देती है। जो भी तकलीफ है तो हमारे को बताए तो हम भी हेल्प कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट का और इलेक्शन पोलिंग सेंटर का पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। अभी हम पर्सनली जाके पूरा स्टाफ पुलिस रेवेन्यू मिलके अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी आर्डर क्लियर है, आर्डर भी दे दिया। पूरा अरेंजमेंट्स इन टाइमली हम कर देते। टीआरएस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिंगोजीगुड़ा डिवीजन के जिमनी इंतखाब को बिला मुकाबला बनाने बीजेपी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इस हल्के से मुकाबला न करने का ऐलान किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हालिया इंतखाबात में लिंगोजीगुड़ा डिवीजन से मुंतखब होने वाले बीजेपी के कॉर्पोरेटर अकुला रमेश गौड़ हलफ लेने से कबल ही इंतकाल कर गए और इलेक्शन कमीशन ने इस डिवीजन में 30 अप्रैल को इंतखाब करवाने का एलामिया जारी किया, जिस पर बीजेपी कायद रामचंद्र राव की क़ियादत में एक वफ्द ने प्रगति भवन में टीआरएस के वर्किंग सदर व वजीर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो 30 अप्रैल को इस डिवीजन के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद का बिला मुकाबला इंतखाब करवाने में मदद करें, जिस पर तारक रामाराव ने इस डिवीजन से टीआरएस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा न करने का ऐलान किया। इस वफ्द में मुतवफ़ी रमेश गौड़ के फर्जंद और खानदान के अफराद भी मौजूद थे। तेलंगाना में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के कोरोना से मुतासर होने के वाकयात में इजाफा हुआ है। वरंगल में एनजीएम अस्पताल के 20 हाउस सर्जन डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। उन तमाम का टेस्ट किया गया था जो पॉजिटिव निकला। उनमें से 4 को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में शरीक किया गया। बताया जाता है कि बाकी हाउस सर्जन को घर पर होम आइसोलेशन के तहत इलाज का मशवरा दिया गया। वरंगल में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। मुतहदा वरंगल जिले में 2000 से ज्यादा कोरोना केसेस सरकारी दवाखानों में मंजर आम पर आए हैं। हुकाम ने केसेस में इजाफे को देखते हुए सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल दोनों अजला में रोजाना 150 से ज्यादा कोरोना केसेस मंजर आम पर आ रहे, जिससे अवाम में तशवीश पाई जा रही। रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना की शिद्दत के पेश नजर मास्क न लगाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया गया है। पहली मर्तबा मास्क न लगाने पर 1000 रुपए और दूसरी मर्तबा मास्क न लगाने पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आला ओहदेदारों के साथ वर्चुअल इजलास तलब किया, जिसमें ये फैसला किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर एनआरसी के निफाज का इशारा देते हुए कहा है कि मुल्क से दरअंदाजों को भगाने के लिए एनआरसी भी नाफिज किया जा सकता है। ख्याल रहे कि इससे कबल अमित शाह और बीजेपी के दीगर लीडरों ने वाज़ेह लफ्जों में कहा था कि इस वक्त एनआरसी के निफाज का कोई इरादा नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि दरअंदाजे हमारे नौजवानों की मुलाजिमतें और गरीबों का खाना छीन रहे हैं। अगर बंगाल में दरअंदाजी पर काबू पाना गया तो ये न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे मुल्क के लिए खतरा होगा। उन्होंने शहरियत के मामले पर रियासत की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तनकीद करते हुए कहा कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि मतवा और दीगर कबाइलियों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आते ही शहरियत तरमीमी एक्ट को नाफिज किया जाएगा।
फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत में नाइट कर्फ्यू पर गौर, खतई फैसला चीफ मिनिस्टर पर छोड़ दिया गया। महकमे सेहत ने बार्स बंद करने और सिनेमा थिएटर्स में निशस्तों की तादाद निस्फ करने की तजवीज हुकूमत को पेश की। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार। रियासत में लॉकडाउन की अफवाहें मुस्तरद, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र। टीआरएस की रुकन खानसाज कौंसल कलवा कुंटला कविता हो गई कोरोना वायरस से मुतासर। नागार्जुना सागर की रायदही के इख्तिताम तक चौकन्ना रहे। चीफ मिनिस्टर केसीआर का पार्टी कायदीन से टेलीफोन पर राब्ता, आराम न करने का मशवरा। तेलंगाना में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की जाए, रोजाना 30 अमवात, दवाखानों में बिस्तर दस्तयाब नहीं। मजालिस मुकामी की इंतखाबात की मजम्मत, मोहम्मद अली शब्बीर। मुल्क भर में दूसरे लॉकडाउन के खदशात, तेलंगाना से लाखों मजदूरों की वापसी। ट्रेन, लॉरियों और खानगी गाड़ियों में मुसाफिरों का हुजूम। कोरोना वायरस में इजाफे से मजदूर परेशान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मुलाजमीन की तकसीम के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। शहर हैदराबाद में 1 साल बाद दोबारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा प्लाज्मा की मांग में जबरदस्त इजाफा। गैर मजाज तामीरात अंदरून 3 हफ्ते मुनहदिम करने बल्दिया को तेलंगाना हाई कोर्ट के ओहदेदारों की हिदायत। एमजीएम अस्पताल वरंगल के 20 हाउस सर्जन कोरोना वायरस से मुतासिर। मुतहदा वरंगल जिले में कोरोना केसेस में इजाफे से अवाम में तशवीश। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।